In your previous class, you learned about how to define a class and how to keep the data member and member function there. Okay, so and you have to know that class can be defined in two ways. The first thing is one is your class predefined class होता है, the another is your user defined class होता है. So predefined class आप किसको बोलोगे? जैसे हम लोग देखे थे that java.util. अगर मैं सिस्टम लिखी सपोज लेट अगर मैं यहाँ पे java.util.system. Okay, so system is a class. This class is in this util folder, then that is inside this java folder. Okay, so this belongs to this class. So this is predefined class. Okay, and user defined class है जो आप class then class name लिखते हो. Suppose I am doing the example or some program of an array. So I give the name that class, then what? Suppose I am giving here class, then suppose demo of array ऐसे दे सकती हूँ. Okay, so this is user defined class. Okay, which is defined by an user. Okay, so today we will see that creating an object. So creating an object में क्या होता है ना, first thing you have to declare an object, declaration, then instantiation, then initialization. Declaration means variable declaration which is associated with the variable name with object type. वो किस type का object है, means which belongs to means it belongs to which class, which type. Okay. The second thing is instantiation. So instantiation is nothing but creating an object. Okay. So when you are creating an object means you create an instance of the class. Okay. So here we use a new keyword. Okay. Here we use a new keyword. So this new keyword needs single or some postfix argument to call to a constructor. We will see. And one thing you have to remember, keep in mind that the constructor name will be same as your class name. So by default आप अगर constructor वो class के अंदर नहीं create कर रहे हो, suppose मैं constructor name दे रही हूँ, suppose class name is class animal. Okay, then constructor भी animal दे सकती हूँ, constructor create कर सकती हूँ. Okay, so constructor name will be same as your class name and by default अगर आप create अगर नहीं भी करते हो तो भी वो by default एक constructor create कर देता है. Okay, so here what happens that this new keyword needs single or some postfix argument to call to a constructor, and here we are creating the instance of a class. Okay, so like you know that object is an instance of the class. Okay, so here and what thing happens here that this new keyword जब आप लिख रहे हो then it returns or reference object it created. Okay, so it returns a reference object it created. So how we will see. The third thing is initialization. So initialization में क्या होता है ना, the new keyword or this new operator is followed by a call to a constructor which initiates a new object. Okay, so initialization can be done in three ways: by reference variable, the second one is your by method, and the third one is your by your constructor. Okay, constructor. So by reference variable में आप create कर सकते हो, by method use करके create कर सकते हो, that initialize कर सकते हो, and by constructor. Okay, so let us see how to create an object. So an object can be created in various ways.
आपका हो सकता है न्यू कीवर्ड यूज करके करते हो, न्यू इंस्टेंस मेथड दैट इज क्लास ऑफ द क्लास, एंड द न्यू इंस्टेंस मेथड belongs to the constructor, and your by deserializing method, then the थर्ड अनदर हो सकता है आपका क्लोन मेथड. ओके, सो दीज आर द डिफरेंट वे, और बहुत सारा वे है. दीज आर द डिफरेंट वेज आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो, बट 99% of an object are created by using this new keyword. So it's better this new keyword, that is the simplest way to create an object by using this new keyword. So first thing is your new keyword by using new keyword. So यहाँ पे मैं सिर्फ new keyword का बताऊंगी, and I will give you some examples of the clone method and or जो deserializing and new instance. Okay, so that's the simplest way आप अपना सिंपल प्रोग्राम दिस न्यू कीवर्ड के जरिए आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करके लिख सकते हो. ओके, सो यूजिंग दिस न्यू कीवर्ड. सो न्यू कीवर्ड में आपका सिंटैक्स क्या है ना, आपका क्लास नेम होगा, क्लास नेम, देन आपका ऑब्जेक्ट नेम, or you can call it as your reference variable that belongs to that same class. Okay, this class name, जो class name दिए रहोगे, that belongs to that type, means the object आप create कर रहे हो which is of which type. अगर animal class है तो that is of animal class. Okay, if that is vehicle class then this is vehicle type. Okay, or it is a furniture है तो that is furniture type. Okay, so object name, then you initialize it and so instantiate with the new keyword new, then your class name. Okay, class name. ओके, सो ऐसे आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो. सो यहाँ पे जो आप क्लास नेम ये देख रहे हो, दिस इज द आप एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर रहे हो. सो जब आप क्लास डिक्लेरेशन और डिक्लेयर कर रहे हो या डिफाइन अ क्लास, डिफाइनिंग ए क्लास, बाय डिफॉल्ट आपका एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट होता है. ओके, सो आप लिखो ना लिखो. ओके, सो दिस इज द कंस्ट्रक्टर, दिस इज द कंस्ट्रक्टर विच इज हैविंग द क्लास नेम. ओके, सो आपका क्लास नेम एंड आपका जो कंस्ट्रक्टर नेम रहेगा दैट विल बी सेम. ओके, आपका कंस्ट्रक्टर नेम एंड क्लास नेम सेम रहता है. सो दिस कंस्ट्रक्टर, यहाँ पे देखो, दिस न्यू कीवर्ड इज फॉलोड बाय कॉल टू अ कंस्ट्रक्टर विच इज ऑफ द सेम क्लास नेम. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिखी कि सपोज आपका क्लास नेम है एनिमल, देन मैं उसका ऑब्जेक्ट और रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट कर रही हूँ obj1. ओके, obj1, देन आई एम इनिशियलाइजिंग इट विद न्यू, देन क्लास नेम एनिमल, एंड वी आर क्रिएटिंग a constructor here. Okay, so the simplest way, okay, this is the simplest way to create an object. Okay, now let us see an example or program by using this new keyword, and we are creating an object by using this new keyword. So first आप class define करोगे. So public, आप public ना लिखो तो भी by default it takes public. So here मैं लिख रही हूँ class, then आपका आएगा क्लास, देन आपका आएगा आपका क्लास नेम, दैट इज सपोज डेमो. द क्लास नेम शुड बी इन कैपिटल लेटर, देन कर्ली ब्रेस स्टार्ट होगा. सो आई एम डिक्लेयरिंग a simple variable here int a equal to 3, and you know the declaration, class, then demo, then
variable int a equal to 3. And here what I will do, that I am writing the main method inside the class. So inside the class demo I am writing the main method here. So I am writing here public static void then main, then what, string class, string argument, then string variable I am creating args. Okay, now starting of this main method, then here I am creating an object of this demo class. Okay, so what I am writing here, demo, then I am writing here suppose ob equal to new, then demo, then close it. Okay, so here I am creating an object of this demo class. So how I will access these data? So मुझे a का वैल्यू देखना है, that is 3. So how will I access it? So here what I will write, that system dot out dot println, that is what, so यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं. So this accessing that value through an object. So ob dot a. Okay, then bracket close, then यहाँ पे आपका मेन का एंड होगा, then आपका इधर, then आपका क्लास का एंड होगा. सो यहाँ से हम लोग स्टार्ट किए हैं. ओके, दिस इज द स्टार्टिंग. ओके, सो हियर, सो इट विल प्रिंट, क्या प्रिंट करेगा? इट विल प्रिंट द वैल्यू system dot out dot println. क्या प्रिंट करेगा? ये 3 प्रिंट करेगा. सो योर आउटपुट विल बी 3. सो ऐसे ही आप एक क्लास के अंदर या फिर आप एक क्लास का नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो. ओके, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट आप क्रिएट कर सकते हो. सो ये जो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट जब क्रिएट करोगे तो आप कैसे क्रिएट करोगे? सो यहीं पे ही सपोज मैं एक, आप सेम लिख सकते हो यहाँ पे. अगर यहाँ पे डेमो ob1 लिखी, न्यू डेमो लिखी, देन यहाँ पे मैं system dot out dot println ob1 dot a, तो वही वो 3 एक्सेस करता. सो सपोज आई एम टेकिंग हियर another variable that is b and I am assigning it 5. okay, now I am creating एक ऑब्जेक्ट मैं क्रिएट की. सो यहाँ पे मैं सपोज और डिफरेंट अनदर ऑब्जेक्ट मैं क्रिएट कर रही हूँ, दैट इज ob1 इक्वल टू योर न्यू देन डेमो. न्यू डेमो मैं यह इंटरफेस पे नहीं कर रही हूँ, आपका मैं यहीं पे ही दिखा दे रही हूँ. इन सम फिर कभी मैं उस आपको एक्चुअली जब प्रोग्राम रन करके दिखाऊंगी. ओके, सो व्हाट विल बी द आउटपुट? यहाँ पे आप एक्सेस किया ओनली ए का वैल्यू. सपोज आई वांट टू एक्सेस दिस, मुझे बी का वैल्यू भी एक्सेस करना है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगी? एक्सेसिंग थ्रू एन ऑब्जेक्ट. सो यहाँ पे मैं बी प्रिंट कर लिखूंगी. सो द क्या वैल्यू आपको दिखाएगा? वो आपको क्या वैल्यू दिखाएगा? यहाँ पे 3 दिखाया, देन आपको दिखाएगा 5. ओके, क्योंकि b का वैल्यू 5 है. सो वो एक्सेस क्या किया है? 5 को एक्सेस किया है. सो और एक चीज आपको याद रखना है कि यू कैन डिक्लेयर अ मेन मेथड इनसाइड. आपको क्या बोली थी कि आपका मेन मेथड हमेशा कोई ना कोई एक ही क्लास के अंदर रहेगा. ओके, सो आप नेस्टेड क्लास भी क्रिएट करते हो, क्लास के अंदर क्लास भी लिखते हो. सो आप यहाँ पे आप कैसे लिखते हो? सपोज ये क्लास डेमो एक क्लास है, सपोज मुझे नहीं लिखना है उसके अंदर, तो मैं क्या करूँगी? यहाँ पे क्लास
क्लास डेमो 1, मैं एक क्लास क्रिएट कर दूंगी। ओके, सो इसके अंदर मैं लिखूंगी। सो अब आपका ये क्लास के अंदर नहीं लिखा हुआ है मेन मेथड। सो अगर ये क्लास के अंदर आपका मेन मेथड लिखा होता है तो दैट इज द मेन मेथड इज इनसाइड दैट क्लास। अगर मैं उसको बाहर कोई दूसरा क्लास के अंदर लिख रही हूँ दैट इज आउटसाइड द क्लास होगा। ओके, सो आप जब ऐसे लिख रहे हो तो यहाँ पे ये क्लास का स्टार्टिंग हुआ ना, तो इसका एंड यहाँ पे करना। ओके, देन ये क्लास आपका स्टार्ट हुआ, देन यहाँ पे मेन मेथड का स्टार्टिंग, देन दिस कर्लीब्रेस दिस या इसके अंदर आपका जो भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो उसको लिखना, देन इसका क्लोजिंग, देन ये क्लास का क्लोजिंग यहाँ पे है। ओके, हाँ और एक चीज कि यहाँ पे देखो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ये एक ही ऑब्जेक्ट के द्वारा मैं एक्सेस की द वैल्यू ऑफ ए को, एंड यहाँ पे वैल्यू ऑफ बी को भी मैं वही सेम ऑब्जेक्ट के द्वारा एक्सेस की। सो आई कैन एक्सेस इट थ्रू सम अनदर ऑब्जेक्ट ऑल्सो दैट इज योर OB1। सो यहाँ पे मैं OB1 अगर लिखती तो भी आपका आउटपुट क्या दिखाता, दिस ऑब्जेक्ट 1, द आपका नेक्स्ट ऑब्जेक्ट भी आपका दिस 5 वैल्यू को एक्सेस करता। ओके, सो यहाँ पे देखो कि अगर मैं यहाँ पे सिर्फ डेमो OB सिर्फ लिखती दैट मीन्स आई ओनली डिक्लेयर एन ऑब्जेक्ट कर रही हूँ, वह मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर रही हूँ। सपोज मैं बोल रही हूँ कि अगर मैं इसको नहीं लिखती ओके तो मैं सिर्फ यहाँ पे क्या कर रही हूँ, ओनली डिक्लेयर कर रही हूँ वाह। सो दिस OB जो लिख रही हूँ दैट इज द रेफरेंस वेरिएबल। ओके, सो एंड रेफरेंस ऑब्जेक्ट में क्रिएट कर रही हूँ, तो यहाँ पे क्रिएट करना जब बोल रही हूँ दैट मीन्स आई हैव टू राइट हियर न्यू। ओके, सो न्यू डेमो। ओके, सो ये फुल जो लिखूंगी तो ही आपका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, and the object name is what, OB. Here the object name is OB1. Okay, now come to accessing the members of the class. Okay, members of the class. So members of the class बोलने से क्या हो सकता है कि आपका डाटा मेंबर है ओके, एंड योर मेंबर फंक्शन, जो आप मेथड भी बोलते हो या फंक्शन भी बोलते हो, मेंबर फंक्शन। ओके, सो वन थिंग आई करेक्ट वन थिंग दैट जब आप यहाँ पे क्लास डेमो जब लिख रहे हो सिंपल, तो आपका एक्चुअली तो आप लोगों का स्पेसिफायर्स होते हैं, एक होता है आपका डिफ़ॉल्ट स्पेसिफायर, जो कि आप अगर यहाँ पे कुछ स्पेसिफायर मेंशन नहीं कर रहे हो कि तो वो डिफ़ॉल्ट स्पेसिफायर को काउंट करता है। जैसे डिफ़ॉल्ट स्पेसिफायर होता है आपका पब्लिक होता है, आपका प्राइवेट होता है एंड प्रोटेक्टेड। ओके, सो दिस थिंग, सो यहाँ पे अगर नहीं लिख रहे हो तो ये डिफ़ॉल्ट को काउंट करता है। ओके, एंड इट इज एक्सेस्ड बाय एनी मेंबर ऑफ दिस क्लास। ओके, सो हियर data member and member function, and you know that each object has its own data member and functions. Okay, so here we already write one program using this concept कि how हम लोग एक डाटा मेंबर को एक्सेस कर रहे हैं। सो यहाँ पे देखो जब हम लोग लिख रहे हैं system.out.println, यहाँ पे OB.a मीन्स अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसी को ही एक्सेस कर रहे हैं ना, ये वैल्यू को ही, ये डाटा मेंबर को ही एक्सेस कर रहे हैं, जो कि आप सी प्रोग्रामिंग या आप वेरिएबल बोलते हो। ओके, उसी को ही एक्सेस कर रहे हैं। ओके, सो ये तो यही डाटा मेंबर को जो A एंड B है हम लोग एक्सेस कर रहे हैं, और यहाँ पे हम लोग कोई भी स्पेसिफायर मेंशन नहीं किए हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे प्राइवेट लिखती तो मैं उसको ऐसे ही एक्सेस नहीं कर पाती। ओके, सो बाय डिफ़ॉल्ट वो ले जा रहा है एंड डिफ़ॉल्ट स्पेसिफायर विल देयर, सो एंड कुछ मेंशन नहीं की हूँ तो इट कैन बी एक्सेस्ड बाय दिस ऑब्जेक्ट। सो डेमो का 2 ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट किए हैं, OB एंड OB1। ओके, सो
इसको system.out.println ob.a ना लिख के भी मैं यहाँ पे लिख सकती, एंड अगर मैं यहाँ पे वैल्यू को इनिशियलाइज नहीं करती और इधर इनिशियलाइज करने वाली होती तो मैं सिंपल सिंटैक्स क्या लिखती, ऑब्जेक्ट नेम डॉट वेरिएबल इक्वल टू वैल्यू, मीन्स यहाँ क्या लिखती, ob.a इक्वल टू आपका 3 लिखती। ओके, वैसे ही हम लोग एक मेथड को भी और मेंबर फंक्शन को भी एक्सेस कर सकते हैं। सो सिंपली अगर मैं यहाँ पे एक इसका मेथड अगर लिखूँ, सपोज आई वांट टू डिस्प्ले हेलो, ओके, आई वांट टू डिस्प्ले हेलो, सो मैं यहाँ पे रख देती हूँ पब्लिक मेथड void, it doesn't have any return type, so it doesn't, void जब लिख रही हूँ it doesn't return any value, okay, so void then suppose display अगर लिख रही हूँ तो अगर मैं इसके अंदर लिखूँ system dot out dot println एंड अगर मैं हेलो देखना चाहूँ हेलो, तो देन आपका मेथड का क्लोज एंड क्लास का क्लोज यहाँ पे हुआ, ये आपका नेक्स्ट क्लास। सो इसी में ही हम लोग देखो मल्टीपल क्लास लिख रहे हैं, मल्टीपल क्लास में आप कैसे एक्सेस कर सकते हो। और एक मैं बताऊंगी जहाँ पे कि आपका अगर क्लास इफ डजंट बिलोंग टू दिस द सेम, ये जो डाटा मेंबर ये हैं, आप अगर दूसरा क्लास के द्वारा एक्सेस करना हो तो कैसे करोगे। ओके, सो यहाँ पे देखो डिफॉल्ट इज टेकन हियर, void डिस्प्ले मेथडली डिफाइन की यहाँ पे, एंड जब ये मेथड कॉल होगा तो हम लोग कॉल नॉर्मली कैसे करते हैं, सो हाउ वी एक्सेस इट, सो थ्रू दिस ऑब्जेक्ट। सो पहला ऑब्जेक्ट को ले रही हूँ, सपोज ऑब्जेक्ट का नेम, ओके, ob इक्वल टू इसका कितना, सॉरी ob डॉट आपका मेथड क्या नाम दिया हुआ है, मेथड डिस्प्ले, ओके, डिस्प्ले। सो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, डिस्प्ले मेथड को कॉल करूंगी, ओके, थ्रू दिस ऑब्जेक्ट नेम, ओके। सो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा आपको, जब ये मेथड आपका कॉल होगा तो ये सीधा कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा मेथड डेफिनेशन में। सो मेथड डेफिनेशन में जाएगा, एंड मेथड डेफिनेशन का इसमें बॉडी, उसका बॉडी पार्ट में क्या लिखा हुआ है, हेलो प्रिंट हुआ है, तो ये हेलो प्रिंट करेगा। सो आपका आउटपुट क्या दिखाएगा कि हेलो, ओके। सो दिस थिंग, सो ऐसे ही हम लोग एक्सेस करेंगे जबकि वो डिफॉल्ट क्लास को बिलोंग्स करता होगा या फिर पब्लिक, ओके, बाय डिफॉल्ट अगर वो पब्लिक लिखा हुआ है तो हम लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं, वो मेंबर डाटा मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं, वो मेंबर फंक्शन को भी एक्सेस कर सकते हैं, ओके। So this is about your accessing the member of the class. Next we will see that what is instance data and what is your class data, okay.